Good morning, all. We are surrounded by chemistry, but many people are not aware of that fact. Chemistry has influenced our life so much that we don't even realize that we ourselves so much into the chemistry that there are so many beautiful creations, chemical reactions, and all our activities are controlled by chemicals. So the topic of our presentation is application of chemistry in our daily life. We are surrounded by chemistry in everyday life. Foods we eat have to do with chemistry. The drugs people use are all extracted from plants or synthesized in laboratories. Soaps, detergents, household cleaners are all chemicals made in a lab. Chemistry is not something that just lives in a lab. It's something that you encounter hundreds of times every day. Friends, now let's see the chemistry in food. All food is made up of chemical substances. Chemicals in food, largely harmless and often desirable. Example, nutrients like carbohydrates, protein, fat, and fiber are composed of chemical compounds. Food additives are used to intensify and enhance the flavor of savory dishes. Some of these substances have been associated with adverse health effects and should be avoided, while others are safe and can be consumed with minimum risk. Artificial food coloring may promote hyperactivity in sensitive children and can cause allergic reactions. Now we will discuss about artificial sweetening agents and their use. They are used just as a sugar substitute. They taste sweet like that of sugar, but makes your food less in calories. Therefore, it's of great importance to diabetic patients. Some common types of artificial sweetening agents include aspartame, allitame, sucralose, saccharin, etc. Next is food preservatives. Friends, food doesn't last. In days or sometime in hours, we see bread goes moldy, apple slice turns brown. On many food items may have bacterial growth on it. But we find many of the food items in grocery shops hopefully unspoiled, thanks to preservatives. But what are preservatives? Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth. Some common food preservatives are oil, salt, vinegar, lemon, sugar, etc. Now let's take the example of a fruit preservative, that is sodium benzoate. It is a preservative which is often added to carbonated drinks and acidic foods like salad dressings, pickles, fruit juices, and condiments. While certain food additives have been linked to some pretty scary side effects, there are plenty of others that can be safely consumed as a part of a healthy life. Now see chemistry in cosmetics. We all know cosmetic companies are trying so hard these days to make human skin faultless. Chemicals, both natural and synthetic, are added to cosmetics to provide an appealing fragrance. The key ingredients present in most cosmetics include water, emulsifier, preservatives, thickener, moisturizer, etc. But why these are added? We know emulsifier is anything as ingredient that helps to keep unlike substances from separating. Emulsifier are added to change the surface tension between water and oil to produce a homogeneous product with an even texture. Here, friends, preservatives are used to prevent the growth of microorganisms such as bacteria and fungi, which can spoil the product and may harm the user. Some popular preservatives are paraben, benzyl alcohol, salicylic acid, and formaldehyde. Thickeners are also added in cream products and lotion. In a pursuit of beauty, always, it's wise to remember that cosmetics can be a complex combination of chemicals. So, staying natural as much as possible still remain the best and safest option. Now let's see the chemistry in cleansing agents.
Cleansing agents, soap, and synthetic detergents improve cleansing properties of water. These help in removal of fats that bind other materials to fabric or skin. There are two types of detergent, that is soap and synthetic detergents. These are sodium or potassium salts of long chain fatty acids. In the case of soap, the carbon chain dissolves in oil, that is dirt. The ionic end dissolves in water, thus soap molecule form structures called micelles. Therefore, it helps in the emulsion in water and helps in dissolving the dirt when we wash our clothes. Drugs and medicines. Chemistry is of great importance in the field of drugs and medicine. Drugs are chemical substances that affect the physiology when taken into a living system. A pharmaceutical drug, also called medicine, is a chemical substance which is used to treat, cure, prevent, or diagnose a disease or to promote well being of a person. Next is chemistry of onions. Guys, we all know that tears come out of our eyes. So please wait. ओके बेटा. Sorry for the disturbance. So we will see chemistry of onion. Guys, we all know that tears come out of our eyes while cutting or chopping onion. But few of us know why. So let me tell you why it happens. Onion consists of amino acid. When we cut onion, its cell breaks or burst, and the amino acid of onion react with some special enzyme to form syn-propane ethyl S oxide. It's a volatile compound and evaporates. When this acid enter our eyes, it produces a burning sensation. To reduce this burning sensation, lacrimal glands of our eyes release water droplets which come out as tears. So let's see the chemistry in our emotions which we face in our daily life. Our emotions are controlled by levels of different chemicals in your brain, but there is no one love or hate chemical. At any given moment, dozens of chemical messengers or neurotransmitters are active. Some of these neurotransmitters go between individual cells while others are broadcast to entire brain regions. So let's take example. Your brain releases stress hormones that make you react faster, flooding certain regions with neurotransmitter. When danger subsides, your brain sends out calming signal in form of chemicals that dampen the response of regions that create fears. So, all your feelings, emotions, it's all written on your face. Now let's see chemistry of pressure cooker. Chemistry of pressure cooker simply means working of pressure cooker. It works on a simple principle, that is steam pressure. Pressure cooker acts like a sealed pot with a lot of steam inside, which builds up high pressure, which helps the food cook faster. Chemistry plays an important and useful role towards the development and growth of a number of industries. These industries includes like glass, cement, paper, textile, leather, dye, etc. We also see huge applications of chemistry in industries like paints, pigments, petroleum, etc. Civilization brought in the invention of cars, buses, aircrafts, and other means of transportation, which facilitate the movement from one place to another. These vehicles are powered by the products of fractional distillation of crude oil. So whatever we have discussed today is just we can see or feel in our life. Apart from this, we all know that there is not any shortage of examples to prove this fact that without chemistry, our life is impossible. So it's one medium to live a better life and better doing.
So it's must for everyone to learn and enjoy. Hence, effective use of chemistry is the need of this modern technological world. Thank you. Have a nice day. थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेरी है इस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग तो हिना और अमनी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर किसी को क्वेरी है तो। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? चलो वेरी गुड। यानी कि हिना और अमनी ने प्रेजेंटेशन के मेथड से ही हम लोगों को सारा सब कुछ क्लियर कर दिया जो ये समझाना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच बेटा अगेन अमनी एंड हिना, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टीम लवजीत प्रिपेयर कर रही है या दीपक को बुला लें? मीटिंग में है लवजीत। हेलो लवजीत, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। अभी आप देना चाहोगे या पहले दूसरी टीम को ही बुला लें, लास्ट में आओगे आप लवजीत? जैसे आप सर कहोगे लास्ट में दे दूंगी मैं। चलो ठीक, इट्स ओके 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 बेटा। दीपक, एम आई ऑडिबल बेटा? दीपक यस सर। चलो तो प्रोसीड करेंगे बेटा। दीपक आप कुमार को बना दो सर प्रेजेंट पर। ओके ओके, अच्छा वो प्रेजेंट करेंगे? जी सर। ओके ओके। दीपक कुमार बेटा आप देखो, आपके पास ऑप्शन आ गया होगा, आपको प्रेजेंटर बना दिया है मैंने। आप स्क्रीन शेयर कीजिए और जैसे भी आपने प्रोसीड करना है आप लोग कीजिए, माइक अनम्यूट करके जैसे भी आपको। यस सर आ गया। ओके बेटा प्रोसीड। आप जब तक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो मैं जरा एक बार स्टूडेंट से मीनवाइल बात करता रहूंगा, अभी आप शुरू मत करना। रिया, एम आई ऑडिबल बेटा? रिया? यस सर। रिया कहाँ रहते हो बेटा आजकल? आप मीटिंग में आते नहीं अच्छे सर से जैसे आना चाहिए। सर मुझे फीवर हो रहा था और ना मेरे पास फोन था उस टाइम सर। अभी सेल आप फोन ठीक हो बेटा? नहीं था। हाँ जी सर। अब बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? रिया नो नो सर, आई एम फाइन। चलो मेन वही रहता है कि हमारे बच्चे जब नहीं जुड़ते तो हमें लगता है कहीं ना कहीं चिंता होती है, भाई क्या दिक्कत होगी, पूछे तो सही। तो हाँ। मीटिंग के बीच में अब कई बार तुम आ जाते थे चले जाते थे, मैंने कहा भाई कोई ना कोई दिक्कत तो है रिया के साथ, तो शायद बात करनी चाहिए, लेकिन बस फिर मैंने कहा कि चलो अभी देखा तुम्हारी एंट्री हुई है तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ रिया से क्या सिचुएशन। अब ठीक है, अब तुम ठीक हो ना बेटा? नहीं बिल्कुल सर आज तो मैंने 9:40 पे ज्वाइन कर रखी है, ये ना एंड हो गई थी सर मीटिंग, अब इसीलिए ज्वाइन की थी अगेन। चलो आप भी कोशिश करना है प्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ा टाइम मिले तो आपको, ठीक है बेटा? हाँ जी सर। चलो बेटा दीपक, जैसे भी आप प्रोसीड करना चाहते हो आप यू कैन प्रोसीड, जो भी आप पहले आगे पीछे जैसे जो भी करना चाहते हो यू कैन प्रोसीड। Good morning to all. Today we are discussing about chemistry. Our topic is valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिनस पॉलिंग ने डेवलप किया था। यह थ्योरी कहती है कि मेटल कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग तब अराइज होती है जब इलेक्ट्रॉन पेयर को लिए हुए लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल मेटल एटम या आयन के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। Here are the main postulates of valence bond theory. जो सेंट्रल मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स में सुटेबल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करवाता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन जितने एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल करवाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इसका मतलब है 6 ऑर्बिटल अवेलेबल है मेटल आयन के बॉन्डिंग के लिए। एंड इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, इसका मतलब है 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं sp_d वगैरह, वो हाइब्रिडाइज होकर न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को जनरेट करते हैं जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और वो एक
परफेक्ट ज्योमेट्री को फॉर्म करते हैं, जैसे स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन। हर लिगेंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल यूज होंगे वो या तो इनर यानी कि n-1 डी ऑर्बिटल होंगे या आउटर यानी कि n डी ऑर्बिटल होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में 1ns 3np और 2nd ऑर्बिटल यूज होंगे, जिससे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, या 1ns 3np और n-1 डी ऑर्बिटल होंगे जिससे हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3। जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल आयन के वो ओवरलैप करेंगे फील्ड लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ और कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। आगे हम इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स को बनाने के दौरान हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल का यूज होता है तो उन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में मेटल के इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर अप किया जाता है। दैट्स व्हाई जो कॉम्प्लेक्स होगा वो या तो डायमैग्नेटिक होगा और विल बी लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स को बनाने के दौरान आउटर डी ऑर्बिटल का यूज होता है तो उन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉम्प्लेक्स को बनाने के दौरान मेटल की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इसलिए इसी तरह के कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आउटर एंड डी ऑर्बिटल का यूज होता है और वो हाई स्पिन होते हैं। इनर डी ऑर्बिटल में इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज होता है और वो लो स्पिन होते हैं। आइए इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टीरियोकेमिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए किया है। हमने सीखा है कि एक सब्सटेंस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं करता उसे मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं करता है और वो डायमैग्नेटिक कहलाता है। दूसरी तरफ अगर एक सब्सटेंस के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर सकता है और वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर हम कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता है तो हम कॉम्प्लेक्स को बनाने में जो हाइब्रिडाइजेशन यूज हुई है उसका पता लगा सकते हैं और इसी से कंपाउंड की ज्योमेट्री का भी पता लगा सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर हमें कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का पता है तो हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का पता लगा सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे दीपक कुमार। Good morning to all of you. आइए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहाँ पे हमने फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन को लिया है। इसमें जैसे कि आपको पता है कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होती है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसलिए जो 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रह जाती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले जो
ए डायग्राम है उसमें जो आयरन है वो ग्राउंड स्टेट में है। अगली बार जो डायग्राम है उसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं। अब इसमें 3d6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए जो 3d में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप किया गया, तो इससे 3d में 2 एम्प्टी ऑर्बिटल बन गए। और इसमें जैसे कि देख रहे हैं कि 6 साइनाइड आयंस हैं। तो जो हमारे पास 3d के 2 ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 3 4p के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। साइनाइड के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें फिलअप हो जाते हैं और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बन जाएगी वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पोंडिंग जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और जैसा कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और स्लाइड में और एक इसमें डी ऑर्बिटल का यूज हुआ है। Fe263 पॉजिटिव, इस केस में भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक्सपेरिमेंटली ये कॉम्प्लेक्स भी इस कॉम्प्लेक्स में देखा गया था कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए जो 3d के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया और हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डिंग के लिए एक 4s ऑर्बिटल, 3 4p ऑर्बिटल और 2 4d ऑर्बिटल्स का यूज किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो 6 वाटर लिगेंड हैं वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं यहाँ पर और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और इसके कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा और इसमें आउटर डी ऑर्बिटल का यूज किया है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ लिगेंड्स पेयर अप करके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो लो स्पिन के होते हैं और कुछ पेयर अप नहीं करते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि हाई स्पिन के होते हैं। तो इसके बेसिस पे लिगेंड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिसमें लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज में अरेंज किया गया जिस सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा गया। और जैसे ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख सकते हैं, इसमें ये जो ऑर्डर है स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो वाटर से लेफ्ट साइड के लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वाटर के राइट साइड में जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं एग्जांपल। इस केस में आयरन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनडिस्टर्ब रहेगी। इसमें 3d6 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके लिए जो 3d के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको पेयर अप कर दिया गया जिससे कि 2 3d के ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए। फिर 4s के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी 3d ऑर्बिटल में फिल किया गया। इससे हमारे पास 3d का एक एम्प्टी ऑर्बिटल बच गया। और यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड के 5 मॉलिक्यूल है तो वो एक 3d, एक 4s और 3 4b ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे और हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो dsp3 होगी। और इस dsp3 हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पोंडिंग जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि हर थ्योरी की लगभग लिमिटेशंस होती हैं तो बैलेंस मोड थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले इस थ्योरी ने कॉम्प्लेक्सेस की क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन को ही बताया, यानी कि इसने उनको
कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं दी। सेकंड लिमिटेशन इसकी ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसने कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में भी नहीं बताया कुछ। अगली लिमिटेशन है, ये थ्योरी हमें यह नहीं बता पाती है कि कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन होते हैं, यानी कि इनर डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम मेटल आयन हो और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 पॉजिटिव और COF6 नेगेटिव, इन दोनों में कोबाल्ट है। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन अमोनिया वाले केस में जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन है, यानी इनर डी ऑर्बिटल का यूज हुआ है, और जो फ्लोरीन वाले केस में कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उसमें इनर डी ऑर्बिटल क्यों यूज हुआ है, इसमें आउटर डी ऑर्बिटल क्यों यूज हुआ है। It does not explain the variation of magnetic moment values with temperature. ये थ्योरी हमें टेम्परेचर के साथ साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज में वेरिएशन आता है उसके बारे में भी डिफाइन नहीं करती है। आगे है, ये थ्योरी हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटीज के बारे में भी डिफाइन नहीं करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं, यानी कि जिनमें लिगेंड बहुत तेजी से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं जिनमें लिगेंड बिल्कुल स्लोली डिस्प्लेस होते हैं। तो ये उनके बारे में भी ये थ्योरी हमें नहीं बता पाई। ये थ्योरी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बताती कि वाटर और हैलाइड आयंस कॉमनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, और साइनाइड आयंस कॉमनली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन वो है कि इसने ये नहीं बताया कि जिन कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी। ये ज्योमेट्री सिर्फ उनकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज के बेस पे ही बताई जा सकती है। जैसे कि जो निकल है जिसकी ऑक्सीडेशन जैसे स्टेट 2 है, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री सिर्फ उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज के बेस पे ही बताई जा सकती है। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, इसमें निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होगी। अगर इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जैसे हम जानते हैं उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल के लिए जो 3d ऑर्बिटल है वो अनअफेक्टेड रहेगा। उसमें जो 3d8 में 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वो अनअफेक्टेड रहेंगे, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, यानी कि अगर वो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री स्केलर प्लेनर होगी, ये तभी पॉसिबल है अगर जो 3d ऑर्बिटल में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर अप किया जाए और वहां पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल बनाया जाए, और फिर लिगैंड उसको फिलअप करके इनर डी ऑर्बिटल का यूज करे, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। तो इसलिए ये थ्योरी इसका भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत दीपक, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी भी। अगर अभी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो बेटा रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन्होंने ऑलमोस्ट सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर कवर कर ली बेटा। अगर आप में से कोई किसी कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा दीपक बहुत दीपक कुमार। चलिए अगली प्रेजेंटेशन। ओके बेटा, अगली प्रेजेंटेशन के लिए हम चलते हैं दोबारा लवजीत कौर के पास, देखते हैं क्या स्टेटस है। हाँ बेटा लवजीत, एम आई ऑडिबल? यस सर। आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? यस सर। Okay, now I will first of all I will make present Lovejeet. Okay. Yes, now you can share your PPT.
सर स्क्रीन शो हो रही है? नहीं बेटा, मेरे पास नहीं हो रही है अभी तक। सर वेट अ सेकंड। ओके ओके, डोंट वरी बेटा। सर अब हो गई? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं हो रही है। और किसी को? हाँ, अब कुछ लग रहा है। हाँ, शेयर करो बेटा, कंटेंट अपना शेयर करो। सर हो गई शो? हाँ बेटा, बिल्कुल। इसको स्लाइड शो में शुरू कर दो और गुड प्रोसीड मॉर्निंग करो फिर बेटा एवरीवन। अपना। Good morning everyone. I am Lavjeet Kaur from section 8 today. I am going to discuss about bioinorganic chemistry. So here are some topics. Sir wait a second. डोंट वरी, टेक योर टाइम बेटा। आपका स्क्रीन शेयर कर हो गई है आपकी। आपको जस्ट आई थिंक प्रोसीड करना है। आप मेरे ख्याल से F5 बटन, F5 से भी शायद आप लोग कर देते होगे। स्लाइड से शुरू हो जाता है फिर शायद, आई थिंक सो, आप लोग विंडो में जो करते हो। So here are some essential, here are some topics on which we will discuss later. First of all, there is introduction, essential elements, then metallophorphins, iron phorphins, structure of myoglobin and hemoglobin, then there is Bohr effect. So first of all, there is bioinorganic chemistry is the branch of science which brings organic chemistry into life process. By recognizing the fundamental importance of life dependence on metal ions in a simple way, we can say that the study of roles of metal ions in biology. Before discussing the next slide, we all know that in our periodic table there is 118 elements, but all elements are not present in our body. Some selected elements are present in our body which are very due to proportion. Trace elements are those are required percentage below 0.1. So there are sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, cobalt, copper and zinc. So there are some important role plays by metals in human body. Here is the tabular form. First of all, there is regulatory action which are played by sodium and potassium. So it plays sodium potassium channel and pump. So here is the question arise, what is sodium potassium channel and pump? So transmembrane protein, it is used to transport sodium and potassium in and out of the cell. It has happened due to the presence of ATP molecules. So it presents functions like kidney function, maintain blood pressure, control heart contraction. Second is structural role. Calcium and magnesium play a vital role in providing strength and rigidity to in bones and teeth. Third one is electron transport agents, Fe+2 and Fe3. Cytochrome redox intermediates membrane-bound protein that contain heme group and carry out electron transport in oxidative phosphorylation. Fourth one is metalloenzymes, that is zinc. Carbonic anhydrase, that is the enzyme present in our lungs which converts CO2 to HCO3 negative. Fifth one is oxygen carriers and storage, iron and copper, which are present in hemoglobin, myoglobin, hemocyanin. Sixth one is metallocoenzymes, cobalt, that is present in vitamin B12.
So there is now metallophorphines. So in which we will first read about structure of phorphine ligands. So phorphine ligands are derivative of for phorphine rings. So phorphine rings are microcyclic tetradentate ligand made up of 4 pyrrole rings linked together through methane bridges. So you can see the methane bridges, 4 pyrrole rings here. So these tetradentate ligand has a bond system with 4 nitrogen sites. So it has present 11 pi bond. As there is 2 hydrogen atom, I mean 2 protons, so it can donate their 2 protons and become dianionic. And as there is 2 nitrogen which have lone pair on it, and it can accept 2 proton and become dianion, dication. So metallophorphines, the complex in which a metal, हमने पीछे इस हमने फॉर्फिन रिंग को पढ़ा है, अगर हम उसके साथ मेटल को कोऑर्डिनेट करवा दें तो इट कैन बिहेव एज मेटलोफॉर्फिन्स. सो मेटल्स जो होते हैं वो फॉर्फिन रिंग के मिडल में लाई करते हैं. एज यू कैन सी डाई पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये Mg+2 भी हो सकता है, Fe+2 भी हो सकता है और Nickel+2 भी हो सकता है. सो आयरन फॉर्फिन इन हीम, ये एक एग्जांपल है मेटलोफॉर्फिन्स का. सो सबसे पहले हमने फॉर्फिन्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने फॉर्फिन रिंग्स के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करवा दिए हैं. देन मूव करते हैं, देन हमने मेटल को कोऑर्डिनेट करवाया है. अगर हम आयरन को इसके साथ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं तो इट बिकम हीम ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन आवर हीमोग्लोबिन. सो हीम ग्रुप को हम दूसरा ये भी कह सकते हैं आयरन टू फॉर्फिन. So ये जो only one isomer protoporphyrin 9 is found in living system. Porphins are planar and aromatic. So it is present in myoglobin and hemoglobin both. So here are some basic functions of hemoglobin and myoglobin. Hemoglobin and myoglobin carry and bind. Hemoglobin is found in blood and myoglobin is found in muscle tissue. They both metalloprotein containing iron at the center of heme group. Hb can bind 4 molecules of oxygen, but myoglobin can bind only 1 molecule of O2, and myoglobin has much higher affinity for binding oxygen at low pressure as compared to hemoglobin. So hemoglobin is pH sensitive while myoglobin is not. Hemoglobin picks up O2 in the lungs and transport it to the rest of the body. Myoglobin accepts oxygen from the hemoglobin in the muscles and store it until needed for energetic process. Deoxygenated hemoglobin uses some of its amino acids to fix up CO2 and then transport CO2 back to the lungs. So here is the structure of myoglobin. So myoglobin, as you know that myoglobin has only 1 molecule of heme. So it has only 1 iron group. So it can only contain 1 or 2 molecule can combine. So it is the similar subunit to hemoglobin, and this is the deoxygenated form of myoglobin. So its molecular weight is 17,000 approx, and it has 8 alpha helix and 153 amino acid units and single unit pentacoordinate deoxy. It has proximal histidine and dihistidine. You can see the red heme group here, that is only one group is present in myoglobin. So now there is the structure of hemoglobin. So as you know that it is found in red blood cells and known as erythrocyte. Due to the presence of hemoglobin, the color of blood is red. So it transports oxygen. So as you can see that there is a grayish 4 units. So it is the 4 unit that is present in hemoglobin known as heme group. And each heme group is surrounded by a protein which is known as globin protein. Further, the globin protein is divided into 2 parts, alpha type and beta type, and both the alpha and beta consist of one polar and one
non-polar bond is polar bond is present in outside and non-polar bond is present in inward. So it has spiral and helix structure. Alpha, it has 141 amino acid, beta 146 amino acids. Then there is three major types of hemoglobin: HbA, which is adult, HbF, that is fetal, and then HbAc, which is sickle. So next is the role of hemoglobin and myoglobin. So सबसे पहले आपको ये सब पता है कि जो एक्सेलेशन है हमारे पास वो रिवर्स प्रोसेस है इनहेलेशन की. सबसे पहले हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से लंग्स में, और ऑक्सीजन जो है हाई प्रेशर पे बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ 100 टोर के नियर अबाउट. सो व्हेन इट मूव्स टू रेस्पिरेटरी टिश्यूज, सो वहाँ पार्शियल प्रेशर, जो हमारे पास प्रेशर है वो लो होता जाता है. तो इस वजह से जो हीमोग्लोबिन है हमारी जो है वो डिसोसिएट हो जाती है और कहाँ चली जाती है, हमारी मसल्स में, जहाँ की मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके पास हमने बेसिक फंक्शन में पढ़ा कि ग्रेटर एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे लोअर प्रेशर पे भी बाइंड कर लेता है. तो ये जो है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ऑक्सीजन के साथ फिर जो है वो टिश्यूज को प्रोवाइड करवाएगा फर्दर के लिए. तो हमें पता है कि जहां हमारा प्रेशर लो है वहां CO2 की प्रेजेंस होती है मसल में, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करेगी. फर्दर जो है जो CO2 है वो कन्वर्ट करेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H2CO3 विच इज कार्बोनेट आयंस. तो ये जो हमारे पास आयन बनेगा वो अनस्टेबल होगा, तो ये फर्दर डिसोसिएट होगी HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में. तो जो हमारे H पॉजिटिव है वो आके जो वैकेंट स्पेस है जहां ऑक्सीजन ने लीव किया था, वो हाइड्रोजन जो है वो उसकी स्पेस एक्वायर कर लेंगे और हीमोग्लोबिन के साथ जो है कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. और फर्दर जो है हमारे पास जो HCO3 है वो लंग्स तक जाएगा, जहां पे फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CO2 में, तो जो है एक्सेल आउट हो जाएगा. देन वी हैव द ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड first we have oxyhemoglobin. You can see the structure here. This is the form of oxyhemoglobin. So डीऑक्सी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो ये आयरन ग्रुप जो हमारे एग्जैक्ट सेंटर पे है वो यहाँ लाई करता है 70 pm में अबव द प्लेन. तो जब ये ऑक्सीजन के साथ, ये जो 5th साइड है वो कोऑर्डिनेट होती है प्रोटीन के साथ, और जो 6th साइड है वो फर्दर कोऑर्डिनेट होती है ऑक्सीजन के साथ इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो हम ये बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है आयरन के साथ तो वो उसको एग्जैक्ट सेंटर में ले आती है, और ये R स्टेट होती है इसमें. तो आयरन के 5 बॉन्ड होते हैं, तो 6 साइड तो वैकेंट होती है जो ऑक्सीजन ने एक्वायर कर ली. सो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास वो लो स्पिन होता है ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, और इट हैज T2G6 or Eg level 0, so that we can say that it has octahedral geometry. So in deoxyhemoglobin, so as it present below the plane, so we can say that it has high spin. इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास T2G4 और Eg2. Due to this, it has square planar. Then we have deoxymyoglobin and deoxyhemoglobin. So as myoglobin has only one unit of heme group, so इसके साथ एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा. Here is the protein chain. This is the protein chain. So जो 5th पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, deoxymyoglobin iron plus just lie the outside the plane. So it when it combined with oxygen, it ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है. तो जो basics of oxygenation remain same for hemoglobin, myoglobin, but there are some difference in the way of 4 unit get oxygenated. So we can say that in deoxymyoglobin there is a paramagnetic structure and it has T2G4 Eg2 and have a high spin, and in oxymyoglobin it has a diamagnetic in nature and having geometry of
square planar and have low spin and T2G5 and EG0. Then we have the most important Bohr effect. So what is it? It is given by Christian Bohr, the father of Niels Bohr, discovered this effect. An increase in concentration of protons and or carbon dioxide will reduce the oxygen affinity of hemoglobin. So it is pH dependent. So अगर हम जरा सा भी change करते हैं pH में, it leads to the change the amount of oxygen transported in hemoglobin. So the chemical basis of Bohr effect is due to the formation of two salt bridge. यहाँ पे salt bridge की formation होती है due to the presence of histidine and aspartate. तो ये क्या करते हैं, histidine having positive charge and aspartate having negative charge, ये bond बनाएंगे और जो वो bond बनेगा वो salt bridge बोला जाएगा उस सबको. तो हमने बोला है कि जो बोहर इफेक्ट है वो पीएच डिपेंडेंट है. तो अगर स्लाइटली भी पीएच में चेंज होगा तो हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, मतलब चेंज हो जाएगी. तो हम अगर बात करें बिलो द पीएच ऑफ 6, जो इमिजॉइडल रिंग है हिस्टाडाइन है वो मोस्टली प्रोटोनेटेड हो जाएगी, thus फेवरिंग क्या बनाएगी, सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन. So next है hemoglobin and allosteric protein. Allosteric means the other side. So इसमें क्या होता है, हमारे पास an allosteric protein does not have, इसके पास कोई fixed properties नहीं होती हैं. Its functional characteristics are regulated by specific molecule present in its environment की वजह से changes होते हैं. So hemoglobin allosteric है, protein है, while जो myoglobin है वो नहीं है. Hemoglobin is the living system, is regulated by oxygen partial pressure. So it is due to the H positive concentration and O2 partial pressure and 2,3 BPG. 2,3 BPG, 2,3 biophosphoglycerate. Then first we have oxygen molecules. So when the pressure decreases, अगर हमें पता है कि जब हम लंग्स से मसल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा जो है पार्शियल प्रेशर क्या है, लो हो जाता है. तो वो पार्शियल प्रेशर लो होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो क्या अनलोड हो जाती है हीमोग्लोबिन से और कहाँ मूव कर जाती है, मसल्स में. तो हमारी जो है ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम हो रही है और मायोग्लोबिन के पास एफिनिटी होती है कि वो लो प्रेशर पे भी कंबाइन कर जाए. तो मायोग्लोबिन के पास जो है हमारे स्ट्रक्चर होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कर्व कैसा देता है, वो हाइपरबोलिक. और हीमोग्लोबिन कैसा कर्व देता है, सिग्मोइडल. सिग्मोइडल का मतलब यहाँ ये है कि ये एक तरह का ऐसा कर्व है जो इंडिकेट करता है कि हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टिश्यूज की तरफ. अगर हम कहें कि हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर हम हाइपरबोलिक की तरह अगर हो जाए तो इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे. हीमोग्लोबिन यहाँ पे 95% सैचुरेटेड होती है लंग्स में, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है 100 टोर के नियर अबाउट. बट अगर हम बात करें कि मसल्स में तो वहां सिर्फ 55% जो है वो सैचुरेटेड रह जाता है मसल्स के साथ, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है कम हो जाता है. सो इट कांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन लो प्रेशर. नेक्स्ट मूविंग टू क्या इफेक्ट देता है बोहर H पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन के ऊपर. तो जब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अनलोड होने लग जाती है. हमारे पास हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं हीम के, तो 4 आयरन ग्रुप मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है अगर आपके पास आपकी फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर अनलोड इजीली हो जाती है तो नेक्स्ट 4 बहुत फास्टली मींस रैपिडली जो है अनलोड हो जाएंगी. तो यही रीजन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे जो है ऑक्सीजन अनलोडिंग बढ़ जाती है और जहां ऑक्सीजन अनलोडिंग बढ़ती है वहां जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो उसकी जगह जो है एक्वायर कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को जो है स्टेबल कर देते हैं. और डीऑक्सीजनेटेड क्या करता है, पीएच को कम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही है और जिससे कई बार एक्सरसाइज करने पे हमें सफोकेशन भी फील होती है और कई बार सांस भी फूल जाती है. नेक्स्ट मूविंग टू 2,3 BPG. 2,3 BPG हमारे पास सबसे पहले मायोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है.
HbF, ये Mb, ये हीमोग्लोबिन Hb है। जो ये ब्लू लाइन है ये इंडिकेट करिए नॉर्मल 2,3 BPG है हमारे पास। और 2,3 BPG बेसिकली एक स्मॉल यूनिट है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। और हमने हीमोग्लोबिन में 2 स्टेट पढ़ी थी, R स्टेट एंड T स्टेट। तो ये T स्टेट को एक्वायर करता है। T स्टेट में डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को ये फेवरेबल करता है। तो हमें हीमोग्लोबिन में पढ़ा था हमारे पास 2 तरह की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों अपोजिट साइड पे होती है, मतलब मीन्स अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या होता है, ये एक तरह की पॉकेट बना लेते हैं बीच में। तो वो पॉकेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है की पॉकेट, उसके अंदर होता है 2,3 BPG जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर ये इसके अंदर रिजाइड रहेगा तो ये क्या फेवर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को। तो इससे क्या होगा, पीएच कम होगा और ऑक्सीजन की जो है एफिनिटी कम होगी। तो अगर हम बात करें, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन वहां कम होती है तो हाइपोक्सिया, एनीमिया या पल्मोनरी जो डिसीजेज है, तो उसमें क्या करता है 2,3 BPG इंक्रीज करा देता है जो है ऑक्सीजन अनलोडिंग को। जिससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है 2,3 BPG की ज्यादा हो जाती है। 2,3 BPG की अगर कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, जिससे जो है हमें सफोकेशन लीड होगी। द लास्ट वन, देयर इज द नेचर ऑफ हीम, कि ऑक्सीजन कैसे बाइंड कर दिया हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से। सो द डीऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू आयरन, ये in heme group in following 3 possible ways. So first is linear arrangement, then is angular or bent arrangement, then there is sideways symmetrical interaction. So because the size and the complexity of the both hemoglobin and myoglobin, it has not been easy to establish electronic or structural nature of bonding O2 to heme. The X-rays studies of myoglobin and hemoglobin have shown that O2 binds to heme group in an end-on band geometry with FeOO bond angle of 130 degree. So हमारे पास एक क्वेश्चन भी था यहाँ, क्यों CO जो है वो उसके पास हाई एफिनिटी होती है, मतलब कि वो हीमोग्लोबिन से देन ऑक्सीजन। तो यहाँ एक रीजन है कि CO जो है हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करता है, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देता है और क्या बना देता है हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो जो कि सफोकेशन लीड करता है। सफोकेशन लीड करने की वजह से वो क्या बना देता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से पॉइजनिंग का वो हो जाता है और O2 सेल क्या हो जाते हैं, टेक्स अवे। थैंक यू। Thank you everyone for being a patient listener, and my special thanks to Sandeep sir for giving me such an opportunity. Thank you very much beta. Thank you very much beta. माइक अनम्यूट करो 1 मिनट के लिए बेटा अपना जगह, क्योंकि मेरी बात को मैं बोल रहा हूँ ना वहां से दोबारा मेरे को आ रही है। अच्छा बेटा लवजीत, ये टॉपिक जनरली नॉन मेडिकल वाले बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तुम्हारा कैसे है? तुमने पढ़ा हुआ है पहले ही ज्यादा है, कैसे क्या है? सर पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छे से तुमने डिफाइन किया इसको, और लगता भी है प्रेजेंटेशन देख के इस पे तुमने पूरा मेहनत लगाई। मेहनत तो खैर सारे स्टूडेंट्स ने लगाई हुई है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जनरली नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के ऊपर से जाती है मोस्टली चीजें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डील नहीं करता। अगर पढ़ा होता तो अलग चीज होती है। एनी हाउ कोई स्टूडेंट अगर कुछ क्वेरी है किसी की इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं बेटा लवजीत से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसने इस चीज को। डेफिनेटली इसको देख के मुझे लग रहा है कि जब अगर हमारे यूनिट जब हम पढ़ाने का नंबर आएगा, हम लोग डिस्कस करने आएंगे, तो मुझे लगता है कि इट इज बेटर कि लवजीत को इनवाइट करेंगे हम इस लेक्चर, इस टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। आई थिंक सो। किसी की कुछ क्वेरी है बेटा? किसी की नहीं है? चलिए एनी हाउ अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा लवजीत।
Welcome, sir. ओके बेटा, थैंक यू। देखिए बेटा, अब जनरली क्या है कि नेक्स्ट वीक जो प्रेजेंट करेंगे तो प्लीज आप, जैसे मैंने बताया था, आप उसकी डिटेल्स मेरे पास भेज देना, तो उसी अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि किस किस की प्रेजेंटेशन करवानी है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जितने भी प्रेजेंट